الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں بہت ہی تکلیف، بہت ہی پریشانی انسان اٹھاتا ہے کہ کس طرح پرورش کرنے سے اولاد ہماری فرما بردار رہتی ہے، کس طرح ہمیں کرنی چاہیے، اس کے کچھ اصول ہو تو ہمیں کیسے اسے اپنانی چاہیے۔ ہر انسان اس کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے، تو الگ الگ بہت ساری کتابوں کے اندر الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 40 تک کچھ باتیں بتائی ہیں، اصول بتائے ہیں۔ ان میں سے کچھ اصول اس سے پہلے جمعہ کو آ گئے ہیں، لیکن اس کی یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ اس کو بھی دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کو وقت پر کھانا کھلانی چاہیے اور وقت پر اس کو دودھ پلانی چاہیے۔ یعنی بچہ جب چھوٹا ہو تو دودھ پینے کا عمر ہو تو اس وقت اس کی وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ اس کی صحت باقی رہتی ہے۔ نمبر 2 بچوں کو صاف ستھرے رکھنی چاہیے تاکہ تندرستی باقی رہے۔ نمبر 3 بچوں کی ہر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پوچھے تو بھی دلا دینا، ہر ایک پوچھے تو دلا دیتا، وہ پوچھے دلائے، یہ پوچھے دلائے، اس طرح ہر ایک ضد نہیں پوری کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کی عادتیں بگڑ جائیں گی۔ نمبر 4 چلا کر بولنے سے اس کو روکنی چاہیے۔ چلاٹے مار کر بول رہا ہے لوگوں سے، تو اس عادت سے اس کو چھڑانی چاہیے، ایسا نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو، ورنہ بڑی ہو کر وہ تو لڑی خور بن جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو، عورت بچوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنی چاہیے۔ مرد بچوں کو بھی چلا کر بولنے سے منع کرنی چاہیے۔ نمبر 5 بری صحبت، یعنی جس کی عادتیں اچھی نہ ہو، ایسے بچوں سے ہمارے بچوں کو دور رکھے، جو پڑھنے لکھنے سے دور بھاگتے ہو، جو کھیل کود میں زیادہ وقت لگاتے ہو، ایسے بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنی چاہیے، بری صحبت سے بچانی چاہیے۔ نمبر 6 کوئی چیز توڑ دے تو اسے مناسب سزا بھی دینی چاہیے، کیونکہ ورنہ کیا ہوگا؟ ہر چیز کو بار بار توڑتا رہے گا، سزا نہیں ملے تو۔ نمبر 7 صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نمبر 8 ان چیزوں سے نفرت دلانا، یعنی غصے سے، حسد سے، جھوٹ سے، جلن سے، حرص سے، چغلی وغیرہ سے، ایسی عادتوں سے بچوں کے اندر نفرت پیدا کرانی چاہیے۔ ان چیزوں سے نفرت بچے کے اندر پیدا کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 9 بچوں کو بہت جلدی، یعنی بہت سویرے نہ سونی چاہیے، یعنی جلدی شام کے ٹائم، شام 6 ہوتے ہی بچہ سو جاتا ہے، اتنا جلدی نہیں سونی چاہیے، بلکہ بچے کی سونے کی عمر کے اندر ایک ٹائم ہوتا ہے۔ بچہ جب 1 ماہ کا ہوتا ہے تو دن میں 8 گھنٹے اور رات میں 8 گھنٹے سوتا ہے۔ بچہ جب 1 مہینے کا ہوتا ہے تو دن میں بھی 8 گھنٹے سوتا ہے، رات میں بھی 8 گھنٹے سوتا ہے۔ اور بچہ جب 3 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت دن میں 5 گھنٹے، رات میں 10 گھنٹے سوتا ہے۔ اور بچہ جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو دن میں 3 گھنٹے اور رات میں 11 گھنٹے سوتا ہے۔ اور اسی طرح بچہ جب
10 महीने का हो जाता है, और 10 महीने से लेकर 2 साल की उम्र जब बच्चे की होती है तो उसमें दिन में 2 घंटे और रात में 11 घंटे सोता है। इस तरह बच्चे की सोने की एक आदत होती है, तो इस वजह से बच्चे को जल्दी ना सुलानी चाहिए, वरना ज्यादा सोने की आदत बचपन से ही पड़ेगी तो हमेशा सोता ही रहेगा। और नंबर 10 ये है कि बच्चा अपना काम खुद करने की आदत उसके अंदर पैदा करनी चाहिए। जो भी काम हो, अपना काम, अपना बिस्तर उठाना, अपना प्लेट उठाना, अपना पानी खुद पीना, अपनी जरूरियात खुद पूरी करना, ये तमाम चीजें खुद बच्चा अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए, इसका भी ख्याल करें। और नंबर 11, बच्चे से कोई गलती हो जाए, बच्चा लोगों के सामने कुछ गलत करे तो तन्हाई में ले जाकर, अलग से ले जाकर उसे समझानी चाहिए, लोगों के सामने डांट डपट नहीं करनी चाहिए। नंबर 12, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की ताकीद करनी चाहिए। नंबर 13, जब बच्चा मकतब जाने के लायक हो जाए तो सबसे पहले उसे कुरान पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए, कुरान पढ़ना सिखानी चाहिए। नंबर 14, मकतब और स्कूल को जाने के अंदर बच्चे की रियायत नहीं करनी चाहिए, यानी आज नहीं ले समझ आता है कि अच्छा ले आज बारिश है ना, न खोले, आज जरा थक गया ना, न को, ऐसा रियायत नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, स्कूल से आने के बाद बच्चे को खेलने के लिए कुछ वक्त भी देनी चाहिए, उसको खेलने के लिए भी कुछ फ्री वक्त देनी चाहिए। ये इसकी तफसीलात, ये सब बातें इससे पहले जुमा में आ चुकी थी। अब आगे की बातें ये हैं कि नंबर 16, माँ को चाहिए कि बच्चे को बाप से डराते रहनी चाहिए। बच्चे को माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बाप से डराते रहने, अब्बा मारते, अब्बा अल्लाते, खामोश बैठ, इस तरह बाप से डराने की जरूरत है। वरना आजकल क्या होता है, माँ बाप के दरमियान जो लड़ाई होती है, माँ के बारे में बच्चे को बोलते हैं, तेरा अम्मा ऐसा करती है, तेरा अम्मा वो करती है, तेरा अम्मा ऐसा बोलती है, बात सुनना नहीं, काम करना नहीं, बोलकर बच्चे को बोलते हैं। बच्चा अम्मा क्या करती है, बच्चे को बोलती है तेरा बाबा ऐसे, तेरा बाबा ऐसा करते हैं, बोलकर बच्चे को बोलती है। इससे दोनों की नफरत बच्चे के दिल में भर जाती है, माँ बाप की मोहब्बत उसके अंदर बाकी नहीं रहती है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो माँ की जिम्मेदारी है कि बाप का डर बच्चे के दिल में पैदा करनी चाहिए। नंबर 17, कोई मेहनत का काम बच्चे को लगाते रहनी चाहिए, जितनी उसकी ताकत है उतनी ताकत का काम उसके जिम्मेदारी लगानी चाहिए, ताकि उससे हिम्मत और सेहत बन जाए। मसलन बाजार से तरकारी लाने की जिम्मेदारी, बाजार से सौदा सलफ गोश्त खरीद कर लाना, इस तरह हिम्मत के काम थोड़े से उसको भी लगानी चाहिए, ताकि उसके अंदर हिम्मत आ सके, ताकि उसके अंदर अक्लमंदी पैदा हो सके। इस वजह से इस तरह के काम भी बच्चों को लगानी चाहिए। नंबर 18, बच्चे को पॉकेट मनी देनी चाहिए। बच्चे को जो भी उसकी जरूरत है, जो दिल खोलकर खर्च कर सके, वो अपना जो भी जरूरत है वो मोल कर खा सके, इतना पॉकेट मनी उसको देनी चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि बच्चा जो भी खरीदे, माँ बाप को उसका इल्म होना जरूरी है। यानी बच्चा कोई चीज खरीद रहा है, कोई चीज खा रहा है, तो उसका इल्म बच्चे को, माँ बाप को होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि बच्चा कोई भी चीज छुपा छुपा कर खाने की आदत ना बने। छुपा छुपा कर मतलब यह है कि ऐसी चीज खरीद ना ले जो माँ बाप डर अल्लाते हो, ऐसी चीज खरीदने की आदत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 19, कोई भी काम छुपा कर ना करे। यानी बच्चा अगर कोई काम करता है तो छुपा कर नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बच्चा वही काम को छुपा कर करता है जो खुद उसको बुरा समझता है। यानी बच्चा जिस काम को खुद बुरा समझता है वही काम माँ बाप से छुपा कर बच्चा करता है। तो इसलिए बच्चे के निगरानी करते रहनी चाहिए कि बच्चा कोई भी काम छुपा कर तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा उसका ख्याल रखना जरूरी है। और नंबर 20, बच्चों को आशिकी और माशूकी ऐसे किस्से पढ़ाने से अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। यानी बच्चे आशिक और माशूक की किताबें पढ़ रहे हो, नावल वगैरह पढ़ रहे हो, बेकार की किताबें पढ़ रहे हो, इससे बच्चे को दूर करनी चाहिए। आजकल क्या होता है, जितने भी टीवी सीरियल हो, जितने भी मोबाइल के अंदर मूवीज आते हो, हर एक के अंदर लव स्टोरी होता है, हर एक के अंदर लव ट्रैक चलते रहता है। तो ऐसी चीजें जब बच्चा देखता है, तो जब एक उम्र की
एक उम्र आती है तो बच्चा भी उसी ट्रैक पर चलने लग जाता है। तो बच्चे को ऐसे हिस्सों से दूर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल तो क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्कूलों के अंदर चलने लग गया है कि फलानी बच्ची इसकी लवर, उसकी लवर, इस तरह छोटे बच्चे होते हैं, कुछ मालूमात भी नहीं होती है, बस फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही एक पहले क्लास में ही इसका जोड़ा लग जाता है, फलाने फलाने का जोड़ा लग जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसी वजह से कि बच्चा मोबाइल के अंदर देखकर सीखता है, घर के अंदर टीवी के अंदर देखकर सीखता है। मूवीज देखो तो वही दिखाया जाता है, सीरियल्स देखो वही दिखाया जाता है, हर एक चीज के अंदर वही दिखाया। जब बच्चा बार बार उसी चीज को देखता है तो उसके दिमाग के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो है एक एम्प्टी मेमोरी की तरह होता है, खाली मेमोरी। उसके अंदर जो डाला जाएगा वही जिंदगी के अंदर रिपीट करेगा। तो जब खाली मेमोरी के अंदर बच्चे को आशिकी के किस्से दिखा रहे हैं, माशूकी के किस्से दिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स दिखा रहे हैं, तो बच्चा आगे चलकर वही अप्लाई करने वाला बनेगा। तो इसलिए बच्चे को चाहिए कि आशिकी और माशूकी ऐसे हिस्सों से दूर रखनी चाहिए। नंबर 21, बच्चे को खेल तमाशा सर्कस की आदत नहीं डालनी चाहिए। यानी जब गांव में सर्कस आ गया ले जाकर दिखाए, फलाने जगह वो आ गया, एग्जीबिशन आ गया ले जाकर दिखाए, ऐसा नहीं, बार बार इसकी आदत नहीं। कभी कभार दिखाए हैं खुशी के लिए, कभी टाइम पास के लिए दिखा लिए, कभी कभार तो ठीक है, ऐसा नहीं उसकी आदत डालते हैं। कब आए तो भी जाना कंपलसरी, नहीं गए नहीं तो असल क्या की होता, ऐसा नहीं, बच्चे को उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। नंबर 22, बच्चों को कोई हुनर सिखानी चाहिए। बच्चे को, बच्चा हो या बच्ची, बच्चे दोनों के अंदर माँ बाप को चाहिए कि उसको कोई ना कोई हुनर सिखाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हुनर सिखाना बोले तो स्कूल छोड़ डालना, क्या बोले तो ऐसा नहीं। अब बाप है, कुछ बाप हुनर सीख रहा है, मसलन बाप का कारपेंटर का काम बाप कर रहा है, तो बच्चा जब फ्री टाइम उसके पास रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ये हुनर सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह किसी का दुकान है, यानी पचारी की दुकान किसी की है, तो वो क्या करे, अपने बच्चे को दुकान पर बिठाकर सौदा बेचने की आदत डालनी चाहिए। इस तरह एक एक हुनर सिखाकर रखनी चाहिए अपने बच्चों को। फ्यूचर में अगर उसे जॉब आया, अच्छे पोजीशन में सेट हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी परेशानी वक्त आ जाए तो उस वक्त उस हुनर को इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी गुजारने वाला बन सके। और इसी तरह बच्ची है तो बच्ची को भी चाहिए कुछ ना कुछ हुनर जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है कि कब क्या हो जाता है मालूम नहीं। नया नया शादी हुआ, 2 महीने हुए शोहर का इंतकाल हो गया, नया नया शादी हुआ, कुछ जा रहे थे, शोहर का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह के हालात इंसान पर पेश आ जाते हैं। अब बच्ची देखे तो माँ बाप के घर आ जाती है, तो बाप भी उसे देखकर रोता है, बच्ची को भी अपने बाप के ऊपर बैठना परेशान लगती है, तब परेशान हो जाते रहती है। अगर उसके पास हुनर रहेगा तो कहेगी कि मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं खुद अपनी जिंदगी खुद गुजार सकती हूँ, मैं खुद, मेरे पास हुनर है, मेरे पास टैलेंट है, मैं अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि हिम्मत होना, यानी पीछे गए तो हमारे पास एक हुनर है ना, उससे जिंदगी गुजार सकते बोलकर ये हिम्मत रहना अच्छा है, लेकिन ये हिम्मत रख ले को मर्द की नाफरमानी करना ये अच्छी बात नहीं है, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो बच्चों को हुनर भी सिखानी चाहिए, जो मजबूरी में अपने वास्ते कुछ पैसे वो कमा सके। और लड़कियों को इतना तो जरूर पढ़ानी चाहिए कि वो घर का हिसाब किताब अच्छी तरह संभाल सके। लड़कियों को इतना तो भी जरूर पढ़ानी चाहिए, ऐसा नहीं कि घर में ही बिठा दिया जाए, दूसरा घर को जाते उसे कहीं पढ़ाना जरूरत नहीं ले, ऐसा नहीं, बल्कि इतना तो भी उसे जरूर पढ़ाए जो यहाँ एक गांव से दूसरे गांव हिम्मत के साथ वो जा सके और अपने घर का हिसाब वो आसानी के साथ कर सके। इतना तो उसके अंदर तो उसको तालीम देना ज्यादा जरूरी है। और बच्चों को उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालनी चाहिए। नंबर 24 क्या है, बच्चों को जितनी ताकत है उतना ही बोझ डालनी चाहिए।
यानी अब बच्चा आया है, बच्चे के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, क्या स्कूल को भी जाना है, ट्यूशन को भी जाना है, फलाने जगह भी जाना है, इस तरह वहां पर यहाँ पर इतनी जगह उसे बोझ नहीं, जितना वो संभाल सकता है उतना ही बोझ उसके ऊपर डालनी चाहिए। वो स्पेशल क्लास बोल कर डाल दिए, वो ट्यूशन बोल कर डाल दिए, वो उसमें तू वीक है बोलकर वो क्लास में अलग से डाल दिए, इस तरह नहीं, जितना बोझ बच्चा उठा सकता है उतना ही डालनी चाहिए, तो हद से ज्यादा बोझ बच्चे पर न डाले। नंबर 25, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनने की आदत डालनी चाहिए। बच्चे के अंदर कि अच्छे कपड़े पहनने का सलीका उसको सीखनी चाहिए कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगा तो खूबसूरत लगूंगा, और सफेद कपड़े से उसे मोहब्बत पैदा करानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी हदीस के अंदर आता है कि सफेद कपड़ा जब तक मैला नहीं होता तब तक वो अल्लाह का जिक्र करता रहता है, तो जब तक वो जिक्र करता रहता है तो पहनने वाले की भी हिफाजत होती है और पहनने वाले को सवाब भी मिलता है। तो इस तरह बच्चे को सफेद कपड़े से मोहब्बत पैदा करानी चाहिए, उसकी हिफाजत भी हो जाएगी, उसको सवाब भी मिल जाएगा। और दूसरे अच्छे कपड़े की, ऐसे नहीं कि फलाने हीरो वो कपड़े पहना, फलाने तो हीरो ऐसा कटिंग करा लिया, ऐसे फाड़ लिया, ऐसे कपड़े ना होनी चाहिए। नंबर 26, आजिजी बच्चे के अंदर सिखानी चाहिए। बच्चे के अंदर बोलचाल के अंदर, रहन सहन के अंदर, चलन के अंदर, तो बच्चे के अंदर आजिजी होनी चाहिए, आजिजी को उसके अंदर सिखानी चाहिए। आजिजी यानी अपने आप को छोटा समझकर रहना, अपने अंदर अपने आप को छोटा बनाकर रहना, नहीं मेरे उतना कौन नहीं बोलकर बचपन से ही रहेगा तो बड़ा होने के बाद उसको उतना कौन भी नहीं रहेगा, वो हाल उसकी बन जाएगी। तो इसलिए बचपन से ही बच्चे के अंदर आजिजी की सिफत पैदा करनी चाहिए। नंबर 27, बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, कोई खूबी वाला काम किया है, अच्छा काम किया है तो उसे शाबाशी देनी चाहिए, उसे इनाम देनी चाहिए, उसे गले लगाना, उसे चूमना, इस तरह उसकी शाबाशी करनी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर हिम्मत आए और नेक्स्ट और अच्छा काम करने की वो कोशिश कर सके। इनाम भी नहीं दिए, हिम्मत भी नहीं दिए, अच्छा ले करा ले बड़ा, इस तरह के अगर केयरलेस कर दिए तो आइंदा वो काम करने का क्या करे तो क्या फायदा, क्या भी फायदा नहीं बोलकर वो पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए हिम्मत, अगर शाबाशी मिलेगी, उसे इनाम मिलेगा तो बच्चा कोशिश करेगा कि नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, क्या करें तो मुझे इनाम मिलता, क्या कैसे करूं तो मुझे इनाम मिलेगा, उस कोशिश में वो लगा रहेगा। तो इसलिए बच्चा कोई खूबी वाला काम करे तो उसे इनाम और शाबाशी भी मिलनी चाहिए। नंबर 28, फयाजी की आदत डालनी चाहिए। फयाजी की आदत बोले तो दिल खोलकर खर्च करना, दूसरों की मदद करना, इसकी आदत बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। लेकिन बच्चे को इस बात का भी ख्याल सिखानी चाहिए कि फयाजी अलग चीज है, दिल खोलकर खर्च करना अलग चीज है, रिश्वत अलग चीज है। यानी बच्चा बचपन से ही जाकर दूसरों को रिश्वत देने की आदत डाल लेता है, दूसरों को करप्शन देने की आदत डाल लेता है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं पैसे दिए तो उन बात सुनता, मैं फलाने चॉकलेट दिए तो उन बात सुनता, फलाना काम मैं करे तो उन बात सुनता, इस तरह की आदत नहीं, बल्कि दिल खोलकर, कोई गर्ज ना हो, कोई इरादा ना हो, बस दिल खोलकर दे रहा है कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा क्लासमेट है, मेरा इस स्कूल वाला है, इस इरादे से वो देने की आदत उसके अंदर डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अब दिए तो बाद में इन देता, इस इरादे से ना दे, बल्कि बच्चे के अंदर फयाजी की आदत डालनी चाहिए। नंबर 29, माँ को चाहिए कि बच्चे को बावजूद दूध पिलाए। माँ को चाहिए कि बच्चा जब दूध पीता हो तो उसको बावजूद दूध पिलानी चाहिए। दूध पिलाने से फायदा क्या होगा? तो फरमाते हैं जब बच्चा दूध पीता है, बावजूद माँ दूध पिलाती है तो उसके असरात बहुत ही अच्छे मुरत्तब होते हैं। जैसे कि एक वाकया आता है कि गालिबन एक अल्लाह वाले शायद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों में से कोई एक है, तो उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा उनके हाथ पर हजारों लोगों ने बैत की, हजारों लोग मुसलमान हुए और लाखों लोगों ने इस्लाम का तौबा किया है, गुनाहों से तौबा किया है। तो उनको बहुत दिल खुश हो गया, तो अपने माँ के पास जाकर कहने लगे कि अम्मी आज मेरे हाथ पर इतने हजार लोग मुसलमान हुए और इतने लाख लोग कलिमा तौबा कर लिए और बैत कर लिए हैं मेरी। तो ये बात उन्होंने कही, तो ये बात मुझे फख्र सा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा काम मैंने किया है। तो माँ कहने लगी कि बेटा ये तेरा कोई भी कमाल नहीं है बल्कि ये मेरा कमाल है। तो उन्होंने पूछा कि अम्मा आपका कैसा कमाल?
تو उन्होंने फरमाया, माँ ने फरमाया कि बेटा जब तू पैदा हुआ, जब भी मैं तुझे दूध पिलाती थी तो पहले मैं वुजू करती थी, उसके बाद मैं तुझे दूध पिलाती थी। उसी का असर ये आज वो जाहिर हो रहा है। तो दूध का भी असर बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर होता है। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाते वक्त वुजू करके दूध पिलानी चाहिए। और इसी तरह अच्छा, बच्चा तो बचपन में नहीं मालूम था, लेकिन आज के जमाने में अगर कर रही है तो वुजू के साथ खाना पकानी चाहिए, जिक्र करते हुए खाना पकानी चाहिए। इसके भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन आज क्या करते हैं, टीवी सीरियल देखते हुए भी पकाते हैं, इधर देखते चूल्हे को चढ़ाए, सीरियल देखते, ब्रेक आया फिर जाको जरा हला को आए, फिर जाको देखे, फिर जाको हलाए। इस तरह करने से कुछ फायदा नहीं होगा। बस वो खाना तो खाया जाएगा, खाना तो पक जाएगा, लेकिन कुछ फायदा हुआ क्या, बच्चे के ऊपर कुछ असरात हुए क्या, बोले तो क्या भी असर नहीं होगा। तो इसलिए जिक्र करते हुए वुजू के साथ बनाएंगे तो कुछ असरात जरूर बच्चे के ऊपर दिखाई देंगे। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बावजू बच्चे को दूध पिलाए। नंबर 30, औरत बच्चों को बुरी चीजों से ना डराए। यानी जैसे बच्चों को डराते हैं, भूत चढ़ाता, उनाता, फलाना दीवाना को पकड़ ले जाता, इस तरह ना डराए। इससे क्या होगा, बच्चे का दिल कमजोर हो जाता है। डरानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बल्कि बार बार ऐसे ज्यादा डराने की वजह से क्या होगा, दिल कमजोर हो जाता है। दिल कमजोर हो सकता, ना डराए। नंबर 31, बनाऊ सिंगार ना करें। यानी बच्चे को ज्यादा मेकअप करना, ज्यादा मेकअप कर लेने की आदत डालना, यह अच्छी बात नहीं है। बच्चे को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा आदत ना करें। रोज डेली मेकअप करा को रेडी करते हैं, डेली पाउडर गिडर लगा को अच्छा रेडी कर डालते हैं। तो इससे क्या होगा, ये तो इसके अंदर अच्छा अपने आप को खूबसूरत बनने का शौक बच्चे के अंदर पैदा होगा और खुद गर्जी ज्यादा आ जाएगी। ये भी अच्छी आदत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बच्चे को नजर जल्दी लग जाएगी। जब बच्चा ज्यादा खूबसूरत, हद से ज्यादा खूबसूरत होता है तो लोगों की निगाहें बच्चे पर पड़ते रहती है। तो हर एक देखने वाला अच्छी निगाह से देखता कोई गारंटी नहीं है। हर एक जना अच्छे से देखता कौन क्या बोलता नहीं, बोले तो ये सब बेकार बातें हैं। तो इसलिए हद से ज्यादा भी मेकअप नहीं करनी चाहिए, तो इससे नजर भी लग सकती है। और नंबर 32, लड़की जवान ना होए तो जेवर ना पहनाए। यानी जब तक बच्ची लड़की है, जवान नहीं हुई है, तो उसको ज्यादा जेवर नहीं पहनानी चाहिए। सोने के जेवरात ज्यादा ना पहनने की आदत डाले। इससे एक नुकसान ये होगा कि उसका जान का खतरा है। यानी ज्यादा जेवर पिना को बच्चे फंक्शन ले गए, कोई आया खींच ले चले गया, देखे तो गर्दन मार लग गया है, कहीं पर दूसरी जगह मार लग गया है, जेवर किसी ने चुरा लिया है बच्ची के पास से। तो इससे क्या होगा, एक तो इसका जानी खतरा है बच्ची का। दूसरा नुकसान ये होता है कि बच्ची के अंदर जेवर का शौक पैदा हो जाएगा। यानी मैं ये सुनना लेना, वो मोल लेना, ये मोल लेना बोलकर बच्ची के अंदर शौक उसका ज्यादा पैदा हो जाएगा। वो सुनना होना, ये से ज्वेलरी होना, ये होना, चंपा सराला, वो भला बत्तर क्या क्या है, वो सब आ जाएगा। तो इसलिए उससे अपने आप बच्ची को भी ज्यादा, जब छोटी हो तो ना पहनाए, जब बड़ी हो जाए तो जब पहना सकते हैं। नंबर 33, बच्चों के हाथ गरीबों को खाना तकसीम कराने की आदत डालना। तो बच्चे को देकर भेज दे, जा बा उसे पैसे देगा, बच्चे के हाथ खाना दे, जा उसे फलाने गरीब को देकर आ। इस तरह उसकी भी आदत डालनी चाहिए और इससे दूसरों को बांटकर खाने की आदत पैदा होती है। नंबर 34, ज्यादा खाने की आदत से बच्चे को बचाए। हद से ज्यादा खा रहा है, अच्छा खाना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा खाता है, जब देखो चरमते रहता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। 20 पर 4 घंटे चरमने की आदत ना हो। नंबर 35, बच्चों को नेक लोगों की कहानियां सुनाया करें। अल्लाह वालों की कहानियां कि फलाने टाइम ये अल्लाह वाले ऐसा करे, फलाने टाइम सहाबा के दरमियान ऐसा हुआ, फलाने टाइम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ऐसे गुजरे। तो इस तरह अल्लाह वालों की कहानियां सुनाते रहे ताकि बच्चे उनकी तरह बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए, उसकी तरफ ख्याल करें। नंबर 36, आतिशबाजी की चीजों को खरीदने के लिए बच्चे को पैसे ना दे। यानी टपाकायला, बुलेटा, वो जो है ऐसी चीजों को खरीदने के वास्ते बच्चे को पैसे ना दे। जहां पर पैसा वेस्ट होता हो, ऐसी जगह पर ऐसी चीजें बच्चे को खरीदने ना दे। नंबर 37, बच्चों की हुदूद सेट करें। यानी बच्चे का एक लिमिट होता है, वो लिमिट सेट करनी चाहिए
کہ کس سے ملنی چاہیے، کس سے نہیں ملنی چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، تمام اس کے لمٹس سیٹ کرنی چاہیے. کیونکہ خوشحال گھرانے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب اچھے گھرانے اچھے ماحول ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں مثلاً کیا ہے، سنڈے آ گیا تو مالدار گھرانے کیا کرتے ہیں کہ آج کا ریسٹورنٹ جائیں گے، کہاں جا کو کھائیں گے، کہیں کیا بنا لے کو کھائیں گے، ایسا بچے سے ڈسکس کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، بچے اپنی حدود جانتے ہیں کہ اپنی لمٹس جانتے ہیں. لیکن جو تنگحال گھرانے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کے اوپر زبردستی مسلط کرتے ہیں. کوئی چیز پسند نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے، تو کہیں کھاتا نہیں، کھا، اسے پسند نہیں ہے، نہیں کھانا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، ایسا نہیں زبردستی کھانا، نہیں کھائے تو کیسا، وہ ہے زبردستی مسلط کرتے ہیں. تو اس سے بچہ ان لوگوں سے تنگ ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. تو بچوں کے حدود بھی سیٹ کرنی چاہیے. نمبر 38، بچے کے موڈ کا بھی خیال کرنی چاہیے. کیونکہ بچہ کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی کچھ حال ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی سیڈ ہوتا ہے، کبھی اسکول کے پریشانیاں اپنے اوپر لے کر بیٹھ جاتا ہے. اسکول میں فلانا ان کو یہ بول ڈالے، فلانی ٹیچر ایسا بول ڈالی، تو یہ بچہ سوچتا ہے. تو ہمیں بچے کے موڈ کا خیال کرنی چاہیے. روتا ہے تو رونے دینی چاہیے، بچہ ہے رونا چاہیے. ایسا نہیں تو نہیں مرد بچہ تو کیسا روتا، روئی جانی، رو بیٹھ بیٹھ بول کو زبردستی اسے بٹھا رہے ہیں، رونے سے روک رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی فیلنگز اپنے اندر ہی دبا لے گا اور آپ سے کچھ بات شیئر نہیں کر سکے گا. دوسرے اپنے جو اندر کے فیلنگز ہیں جب آپ کو وہ شیئر نہیں کرے گا، تو اس کے اپنے خیالات آپ کو شیئر نہیں کرے گا، تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ فیوچر میں کیا بننا چاہتا ہے، اس کے پلاننگ کیا ہے، وہ آپ کو شیئر نہیں کرے گا، تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات آپ کو نہیں ہو سکے گی. تو بچے کے موڈ کا بھی خیال کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور نمبر 39، ماں باپ کو خود صحیح ہونا بھی ضروری ہے. یعنی یہ ہے کہ بچے صحیح ہو جانا، ہمیں کیسا ہے تو بھی رہتے، بچے ایک ہی صحیح ہونا بولے تو یہ بھی ہونے والا کام نہیں ہے. بچے کیا ہے، دیکھ کر، ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ باپ کیسا بات کر رہا ہے، ماں کیسی بات کر رہی ہے. بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو بچے کو جب ماں باپ صحیح ہوں گے، صحیح الفاظ استعمال کریں گے تو بچے بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. جب ماں باپ صحیح الفاظ استعمال نہیں کریں گے تو بچے کو صحیح استعمال کرو بولے تو یہ ہونے والا کام نہیں ہے. تو اس لیے ماں باپ پہلے خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. صحیح الفاظ، گھر میں دیکھو وہ یہ الٹے سیدھے الفاظ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے اور بچے سے کہہ رہا ہے تو ایسا بولے جانی بول کر، یہ ایکسپیکٹیشن کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ماں باپ خود صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ بچہ ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، ماں باپ سے ہی دیکھ کر سیکھتا ہے، اس کا چھاؤ ہوتا ہے. یعنی آئینے کے اندر اس کا ریفلیکشن جیسے ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. تو بچہ ماں باپ سے وہی چیزیں گھر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ سب دیکھتا ہے، باہر جا کر اس کا ریفلیکشن اپلائی کر دیتا ہے، باہر جا کر وہ سب چیزیں بتا دیتا ہے کہ گھر کے اندر کیسی باتیں ہو رہی ہے. یہ بات کرنے کے ڈھنگ سے سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ گھر میں ایسا بات کر لیتے کیا کہ ان لوگ، اس واسطے بچہ بھی ایسا بات کرتا ہے، ایسا سمجھ جاتے. تو اس لیے ماں باپ کو خود ٹھیک ہونا یہ بھی ضروری ہے. نمبر 40، بچہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ 40 دن کے اندر ختم کر کے حوالے کر دے، نہیں، بلکہ بچے کی نگرانی ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. نمبر 41، بچے کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہو، کوئی اچھی صفت ہو، اس کو ابھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچے کے اندر کوئی اچھی ٹیلنٹ ہے، کوئی اچھی صفت ہے تو اس کو دیکھے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.